स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिबगिंग प्रोसेस को, जो हम लोग पहले से देख रहे थे। जस्ट 1 सेकंड। तो देखिए, डिबग एक्चुअली होता क्या है, हम लोग कोड लिख लेते हैं कोई भी, ठीक है। कोई आइडिया डिबगिंग प्रोसेस होता क्या है? कोड डेवलप करना तो मान लीजिए हमें आता है, लिखने भी आता है, बट डिबगिंग क्या होता है? कोई आइडिया है कि नहीं को? To analyze code and detect the error. Okay, detect the error. Fine. Next. Sir, find and fixing the error. Okay. Fine. It means तो एरर आ कैसे गया फिर? कहने का मतलब जब हम कोड डेवलप कर रहे हैं तो हमें तो पता है ना कि हाँ हमारा कोड ये लिखा हुआ है, तो फिर एरर कैसे आ गया उसमें? जब हम कोड लिख रहे हैं, we are creating a code. In that time, we mistake some syntax. That I think that's why. Okay. It means while writing the code, we getting some mistake. Fine. Okay. Next, anyone? Okay. So see, what is debugging actually? Suppose we written the code. Okay. Be thinking only one scenario. That what we thinking? Screen दिख रहा ना सबको? Yes sir. Okay. So what we thinking? Suppose we created one registration form. What we will think? When we submitting the data, our data have to save somewhere. Correct? Or whatever we had written, like either for the console or local storage or anything. Means that we are just thinking for one step. Like from here data will come to this step, from here it will store somewhere. Means we think only one direction. We had not think any side way. That suppose data is sending into the database, then during that transfer of the data from the user interface, from the UI or browser to the database, what are the steps will followed? Second thing, when it entering the data from the user UI to the database, suppose that in the side, what are the options will be there? What are the scenario will be there? Suppose that this registration form, what will be the process? When we will fill the data, what will happen? And what should be happen? Just speak. Then we will go into the debug mode. That data will submit in our local storage. Okay, means that data will save somewhere, correct? Yes, sir. That's fine. One step we had to think. So the same step we will think. But just imagine when we are entering that data, okay, our data will go and save into the database. After saving the data, what about the registration form? Because we had entered the data, correct? So after once we submit the data, our all the input field, it should be what? Empty or preoccupied data? It will empty, It sir, should be empty. Yeah, it should be empty because we had saved the data. Suppose that user have to submit a new form or second user have to submit something. Okay, so suppose that your previous data is occupied in the input field, that is useless for that user. That should be not there. In that case, what we will do? We have to make the form empty and make that form ready for the next means next activity. Like that time we have to think, but when we are designing the any code, that time we are not thinking this wide options. Okay, we are thinking only one direction, and due to one direction we getting more number of bugs, and bugs itself is known as the error or mistake. Okay, in the real scenario when you will enter, you will think, you will listen the word like bugs. So bugs is nothing. Bugs means error. When while entering, your work is going to be happen, your work is successfully completing, but suppose something different activity have to happen, that is not there. That is known as the bugs. Okay, so
Suppose that what we had done here, previously we had added the breakpoint. Already we know how to add the breakpoint. Just we have to click on this area. Suppose we have to remove the breakpoint. What we can do? We can click on this breakpoint removed. Okay. The same removing breakpoint option is available in the below option. Below also. Here. These all are clicked. These all checkboxes are now clicked. Okay. Now checked. If you will click this one, let's see. See line number 10, 11, 12, whatever is there. Remove this. You can see now this all getting removed from there. Got it? So this way we can remove that. So let's add. Let's add at each point wherever it's going to be added. Okay. So how we will start? Just press. I am joining this. Okay. Let's reload the page. Once we reloaded, our this debugging mode got started. Okay. Once we done that, we will get the data of each line. Okay. So how we will verify the data? Just put cursor over that particular area. Suppose value. Put cursor over this. Get element. It's nothing. We're not getting anything. Document.get element. So and here also we are not getting any output. Okay. Just execute. How we can execute? We have two options. Step over, step into. Go anyone. I will go step into. When we executed, what happened? We got the data for this one. Okay. After that, next line, set color UI. It came to here. Let's go again next. Where it entered? It entered into the function set color UI. Now we got which line is that? Line number? Where we pointing? Line number 69. 69. Correct. So see line number 69. Now we are getting undefined. Okay. Just put cursor over local storage. What we getting? We getting some value. These all values are available in your local storage. If you want, you can go to the local storage application and check. You have the data. Correct. So this data itself, text color, background color, you can cross verify. See that text color, background color. How we got the length? Can anyone? Because what we want from here? Dot local storage dot length. Correct. So that's why we got the length value also. Let's see. What is the value of local data length? It's undefined. Why? Because this line execution not completed. Now we are in that line. Once it will get execute, then we will get the value. Let's move next. So now we got the value. Correct. Local data length. And the value we getting there also, or when we put cursor over this, you will get the value. Or here also you getting orange color. Okay. Now tell me about this condition. If condition line number 71. When you will enter inside this, means here you have two block. Correct. We have here two block. One block is this one and another block else part. Okay. Now tell me when you will enter inside this first block and when we will enter in the second block. Can anyone? If you have idea, then you can. When if condition is not correct, that time they can go else condition. Sir, firstly, Okay. if condition will apply. After if condition will not correct, then after it will apply the else condition. Okay. It means you can think in Hindi language also. Okay. That if यदि आज संडे है तो क्या है? छुट्टी है, नहीं तो क्लास है या कॉलेज है, तो वही कंडीशन है. मीन्स कंडीशन जब हमारा वैलिड हो रहा है, ठीक है, जब हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूशन होता है. इसका मतलब है यहाँ जो ये लेंथ इक्वल टू 0 अगर दे रहा है, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा. ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक ये वाला ब्लॉक. अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो नीचे का ब्लॉक, जैसे हम लोग क्या बोले, यदि आज संडे है, आज इक्वल टू संडे. करेक्ट. तो आज इक्वल टू संडे, अगर ये जो आज जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है.
आज मंडे हो सकता है, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है, लेकिन राइट साइड में क्या है, आज इक्वल टू संडे। अगर ये दोनों मैच करेगा तभी हमारा नीचे सेटिस्फाई होगा कंडीशन। अगर आपके पास पैसा है तभी आप मार्केट जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो वही चीज है यहाँ पे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब होगा। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं लोकल डेटा लेंथ क्या है, वैल्यू। कर्सर देखिए आपको दिख रहा है वैल्यू इफ क्या आता है, तो सर 2 है। देखिए डिबग, ये जो डिबग मोड हम लोग रन कर रहे हैं ना, इसका बेनिफिट क्या होता है। सपोज दैट जब आप कर्सर रख रहे हैं यहाँ पर लोकल डेटा लेंथ और किसी तरह से हमने कोई मिस्टेक कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, और जब ये वैल्यू नहीं मिलेगा तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अभी क्या हो रहा है, लोकल डेटा लेंथ कितना है, 2 है, और इक्वल टू 0। क्या कंडीशन ये ट्रू है, लोकल डेटा Yes. लेंथ 2 आया, 2 इक्वल टू 0, क्या होगा, False. 2 इक्वल टू 0, क्या दिया, फॉल्स। करेक्ट। अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे डिबगर मोड जो देता है हमें आउटपुट, वो क्या देगा। तो देखिए इफ के अंदर का अगर आपको पूरा को देखना है कि आपका ट्रू दिया या फॉल्स दिया, ये पूरे को, तो आप क्या कीजिए, पूरा को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और जब कर्सर आप लेकर जाइएगा ना, ये फॉल्स या ट्रू शो करेगा, बट अभी हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पे जाइए, कहां पर गया, अब आप इसके कंडीशन को चेक कीजिए, कर्सर रखिए, क्या दिया, दे रहा है ना फॉल्स। समझ में आ रहा है सबको ना। तो हम जब पूरे को सिलेक्ट करेंगे तब देगा, क्योंकि अगर हमने लोकल डेटा लेंथ पे कर्सर रखा तो ये 2 देगा, क्योंकि इसका आउटपुट पहले का है। लेकिन ये पूरे का हमें रिजल्ट जानना है, इफ कंडीशन का, पूरे को सिलेक्ट कीजिए और कर्सर रखिए, तब ये देगा। क्लियर। अब मैंने क्या बोला कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक में जाएगा। हम किस में आ गए हैं, एल्स ब्लॉक में आ गए हैं। आप देखिए जब एल्स ब्लॉक में आए तो क्या है यहाँ पे, सेट बैकग्राउंड कलर, कलर ये सब है, जाइए एग्जीक्यूट करते जाइए, आपको यहाँ कुछ वैल्यू मिलेगा। ओके 1 सेकेंड, आप देखिए, आप इसको और छोटा करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कहाँ गया सेट कलर यूआई, यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, इसी लाइन पे हम लोग आए थे क्या, एक सेकंड, सेट कलर यूआई, सॉरी, सेट कलर यूआई एल्स ब्लॉक में, 53 सर, हाँ 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 53। करेक्ट, वो यहाँ पे, करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल है, 1 सेकंड, यहाँ पे आपको लाइन दिख रहा है, एल्स में हम लोग गए लाइन नंबर 78 पे गए, करेक्ट। जब हमने लाइन 78 पे गया तो यहाँ पे क्या कॉल हुआ है, इक्वल टू के बाद क्या है, गेट लोकल स्टोरेज बीजी कलर, है ना। तो ये क्या करेगा, ये हमें बीजी कलर पे मूव करेगा, क्योंकि ये फंक्शन कॉल है। इसीलिए क्या हुआ, हम लोग बीजी कलर ये फंक्शन पे आ गए हैं, दिख रहा है सबको। और यहाँ पे क्या है, अभी हमें पैरम में जो है अनडिफाइन है, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे ये जो रिटर्न दे, जो भी देगा ना, वो वैल्यू मिलेगा नीचे वाले को। एग्जीक्यूट कीजिए इसको, कहाँ गया ब्रेक पॉइंट, ठीक है। अभी देखते हैं लोकल वैल्यू कुछ दिया यहाँ पे, हाँ दे रहा है, वैल्यू आ गया यहाँ पे हमें, लाइन नंबर 59 में दिख रहा है आपको, और रिटर्न हो गया। रिटर्न करने के बाद क्या हुआ, एल्स पार्ट में जो कॉल किया था गेट बैकग्राउंड कलर, इसको आया। यहाँ पे कर्सर रख कर देखते हैं क्या ये वैल्यू देता है क्या, इसको पूरा को सेलेक्ट कर दिए, सॉरी, कर्सर रखिए, दे रहा है ना वैल्यू, जबकि ये क्या है, ये फंक्शन कॉल है, लेकिन ये वैल्यू हमें दिया, क्यों दिया, कोई बताइए। क्योंकि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट हुआ है, बट एक चीज और है वहां पे, ये वैल्यू क्यों दे रहा है, उसके अंदर में कंसोल में वैल्यू देता है या कुछ में आता ना, बट ये लाइन नंबर हमें वैल्यू क्यों दिया, हमने कहाँ पे कॉल किया, गेट कलर को कॉल किया, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू Because we आता, call the function, sir. That's why it in the वी कॉल else. फंक्शन, ओके। सर क्योंकि सी उस फंक्शन में वैल्यू को रिटर्न किया है इसलिए। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न करवाया है, ठीक है, और रिटर्न करने के कारण ये यहाँ पे हमें आउटपुट नहीं दे रहा है, लाइन नंबर 58 टू 61 के बीच में आउटपुट नहीं है, क्योंकि फंक्शन हम जब लिख रहे हैं तो एग्जीक्यूट होकर वहीं प्रिंट करता है, बट ये वो नहीं कर रहा है। इसने क्या किया, रिटर्न किया, और किसको रिटर्न करके वैल्यू दिया,
जिसने इस फंक्शन को कॉल किया था, समझ गए? और किसने कॉल किया? तो यहाँ पर इसने कॉल किया, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? जब हम सेट कलर को कॉल करेंगे तो क्या है यहाँ पर? गेट स्ट्रिंग टेक्स्ट कलर। इसका मतलब हमारा जो ये डिबगर जो मूव होगा वो कहाँ पर मूव होगा? लाइन नंबर 63 के फंक्शन पे। चलिए ब्राउजर पे देखते हैं। तो अभी हम इस लाइन पे आ गए। अभी चेक करते हैं कि गेट कलर यूआई जो यहाँ पे जो वेरिएबल है गेट कलर टेक्स्ट का, ये सर क्या वॉइस आउटपुट ब्रेक दे हो रहा रहा है? है सर आपका। ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं सर। नो सर। ओके, नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। तो देखिए अभी क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे फंक्शन जो है ये भी हमें कोई वैल्यू दे रहा है। कर्सर इसको कीजिए और वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब शायद इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है या शायद जो भी हो। देखते हैं स्टेप इनटू में करके कि क्या कहाँ जाता है ये। एक सेकंड। हाँ, गेट कलर यूआई में आ गया। अब इसका हम देखते हैं कलर क्या दे रहा है। तो यहाँ पे हमें लोकल कलर टेक्स्ट वैल्यू देखिए 1D, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास क्या मिल रहा है? ये सेकंड, सॉरी, इसको सेलेक्ट कीजिए 1D, ठीक है। इसको कलर मिल चुका है। एनीवे एग्जीक्यूशन होने के बाद ये रिटर्न कर दिया। अभी किसके पास कर्सर है? लाइन नंबर कितना? 81, करेक्ट। 81 में जाइए, सॉरी। और स्टेप ओवर जैसे ही कीजिएगा ना उसको एग्जीक्यूशन छोड़ के वो बाहर निकल जाएगा। अभी क्या हुआ? अभी हम बाहर निकलने वाले हैं किससे? अभी कर्सर आपका कितने पे है? लाइन नंबर 83 पे। इसका मतलब क्या होगा? कर्सर हमारा किससे बाहर निकल रहा है? पूरे सेट कलर यूआई फंक्शन से। समझ में आ गया? हमने क्या किया? जबकि एक चीज सोचिए, सेट कलर यूआई के अंदर कितना फंक्शन कॉल हुआ? इससे हम बाहर निकलने वाले हैं, बट इसके अंदर हम थे तो कितने फंक्शन को इसने कॉल किया? 2। 3 सर। लाइन नंबर, सॉरी हाँ 3। लाइन नंबर 78, लाइन नंबर 78 में एक फंक्शन यहाँ पर है। दूसरा फंक्शन आपको लाइन नंबर 80 पे है और फिर लाइन नंबर आपको 81 में है। बट ये कब कॉल हुआ? जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ा, करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट बाहर निकलिए। ये जो आ रहा है ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का कुछ ये angular.js है और ये सब जो रहता है ना वो सब का आएगा आपको। तो context.js से हमें नहीं मतलब है। ये जब आ जाए तो हम बाहर निकल जाइए। आपको ये दे रहा है लाइव सर्वर का। बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे? यहाँ स्टेप ओवर है, आप स्टेप ओवर क्लिक कीजिए, इसे बाहर निकलते चले जाइएगा। अब कहाँ आ गए? हम स्क्रिप्ट में आ गए। बाहर निकलिए, फिर उसी पे आ गया। 1 सेकेंड, फंक्शन उसके अंदर धर लिया था, ठीक है। एनीवे हमारा आउटपुट आ गया। अब इसको हम बंद कर देते हैं। बंद कैसे करेंगे? अब यहाँ से आप यहाँ जब क्लिक कीजिएगा ना, प्ले एंड पाउस का बटन है, बंद हो जाएगा। अब हम लोग ये काम करते हैं, ये पूरे ब्रेक पॉइंट को रिमूव करते हैं। जनरली जब हम डिबग करते हैं तो क्या होता है कि अंदर में जाकर अगर कोई लाइब्रेरी यूज हो रहा है या कुछ हो रहा है यूज, तो उसमें भी वो एंट्री कर जाएगा, ठीक है। तो वैसे केस में हम स्टेप इनटू ना करके, जब आपको लगा कि आप अंदर जा रहे हैं तो आप स्टेप ओवर कर दीजिए, आप बाहर निकल जाइएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा? आपका डिबगिंग प्रोसेस होता है। तो ये तो एक कलर का था, तो इसमें आपको उतना ज्यादा नहीं विजुअलाइजेशन मिला। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, वेट। हम लोग क्या चाहिए? सबमिट बटन। सबमिट बटन कहाँ पर है? सबमिट सबमिट सबमिट, फॉर्म डेटा नाम का है ना। चलिए ठीक है, फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा में क्या कर रहे हैं? डॉट वैल्यू, कोई फील्ड का नहीं लिया हुआ है क्या? कॉलेज नेम। चलिए हम लोग एक फील्ड को लेते हैं। यूजर नेम हो गया, आईडी, डेट, यूजर नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट, सॉरी देखिए कैपिटल स्मॉल सब देख कर लिखा कीजिएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यूजर नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। और मैं इसे
console.log में, चलिए कंसोल में प्रिंट कर देता हूँ। किसी हम लोग को ये चेक करेंगे कि जो हमने लाइन नंबर 10 को लिखा है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हमें वैल्यू क्या मिलता है। हमें दूसरे से कुछ नहीं मतलब है, हमें ये देखना है कि उसका वैल्यू आता है या नहीं। चलिए सोर्स में जाइए। आप जब कोड भी करते हैं तो आप चुपचाप जाके डायरेक्ट डिबगिंग मोड में भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब जो खुल जाएगा ना, इस सबको बंद कर दीजिएगा। ये robot.css ये सब से हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है सिर्फ form.js में। पहले ब्रेक पॉइंट हटा दीजिए सभी जगह से। अब हम इस सभी जगह नहीं लगाएंगे, हम लोग ये समझ गए कि कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें नहीं मतलब है इतना सारा ब्रेक पॉइंट लगाने से। ब्रेक पॉइंट वहीं लगाया जाता है जहाँ पे हमें डाउट होता है कि हमारा ये प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, वैसे कंडीशन में। हाँ एक सेकेंड और देखिए, हम लोग एक गलती करते हैं। कहाँ गया हमारा इफ ब्लॉक? इफ ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है? लोकल डेटा लेंथ इक्वल टू 0, करेक्ट। हम लोग इसको गलती कर देते हैं। लोकल डेटा लेंथ को हम लोग लेंथ से लिख देते हैं। ये वेरिएबल एग्जिट कर रहा है क्या? नहीं, ये तो वेरिएबल है ही नहीं। सेव करते हैं, देखते हैं एरर दे देगा ये तो पहले ही, मुझे जहां तक उम्मीद है। तो वो डिफाइन नहीं है ना, ठीक है। लेट लोकल डेटा लेंथ इक्वल टू अब देखिए एरर तो नहीं देगा, हो गया। हम दो जगह ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पे आपको लाइन नंबर 10 हो गया यूजर नेम का, और इफ कंडीशन। इफ कंडीशन कहाँ गया? इफ कंडीशन ये रहा। चलिए ये दोनों जगह पे हम लगा दिए। अब क्या करना है, ये तो हम लोग सिर्फ कंडीशन पास किए, करेक्ट। अब हम चेक कैसे करेंगे, इन द सेंस और कहीं लगाना होगा या क्या? ठीक है, लाइन नंबर 10 जो है ये कॉल कब होगा? फॉर्म डेटा जो फंक्शन लिखा हुआ है ये आपका बटन क्लिक पे है, ये कॉल कब होगा लाइन नंबर 10? जब जब बटन हम क्लिक बटन को करेंगे क्लिक, उसके बाद बटन क्लिक जब करेंगे तो हम लोग अगर चाहें तो हम बटन क्लिक के पास तो नहीं लगेगा, जब भी लगेगा तो अंदर ही लगेगा। चलिए हो गया, काफी है। चलिए रिलोड कर लेते हैं। हो गया। अब चलिए क्या करना है हमें, हमें ये करना है, एक सेकंड कहाँ आ गया सबसे पहले? ओ, सेट कलर यूआई को ही कॉल कर लिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लोड हो रहा है ना, ठीक है। चलिए हम लोग को अब देखना है क्या, वैल्यू के हेल्प से कि कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ जो ये लिखा हुआ है लोकल डेटा लेंथ, इसका वैल्यू क्या है? अभी हम लोग ने इसको कोई डिफाइन नहीं किया अनडिफाइंड है, सर। अनडिफाइन है। आपको यहाँ भी ऊपर भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड लाइन नंबर 70 में भी दिख रहा है। बट एक चीज सोचिए, लाइन नंबर 70 को तो हम लोग एग्जीक्यूट नहीं किए, यहाँ ब्रेक पॉइंट नहीं है, फिर भी ये आउटपुट कैसे दे दिया? यहाँ दिख रहा है ना आउटपुट रेड, ये पिंक कलर ऑरेंज कलर में। हम लोग वहां ब्रेक पॉइंट नहीं लगाए थे तो, बट फिर भी ये कैसे दिया? इसीलिए दिया क्योंकि ये लाइन आपका एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, और हम लोग डिबगिंग मोड में जा रहे हैं, इसीलिए वो वैल्यू देगा। तो अब सोचिए इसका कंडीशन क्या होगा इफ वाले का? तो हमें क्या आ रहा है, इफ के कंडीशन में आपको दिख रहा है यहाँ पे अनडिफाइंड। तो क्या हुआ, अनडिफाइंड इक्वल टू 0, क्या लगता है ट्रू फॉल्स? क्या फॉल्स। फॉल्स होगा? तो ठीक है, हम लोग इस पे कर्सर रख लेते हैं, अनडिफाइंड दिया है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं स्टेप इनटू, और देखते हैं इसका कंडीशन को। अब देख चेक करते हैं कि ये हमें ट्रू दिया या फॉल्स दिया। कर्सर रखिए, क्या दिया? फॉल्स। अभी हम लोग जो गेम खेल रहे हैं वो वैल्यू के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग कलर के साथ देख रहे थे कि क्या हो रहा है, अभी हम वैल्यू पे चल रहे हैं। तो अभी हमें क्या दिखा, यहाँ पे हमारा जो था अनडिफाइंड था और इक्वल टू 0 हुआ था, हमें दिया इसने फॉल्स, इसीलिए हम मूव हो गए कहाँ, एल्स ब्लॉक में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अब इसमें से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है अब आगे वाला से। हम स्टेप ओवर करके बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमें मतलब है बटन क्लिक करने के बाद। अभी हम स्टेप इनटू नहीं कर रहे हैं, स्टेप इनटू इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें उससे बाहर निकलना है
और बाहर निकलना है पूरे, तो स्टेप आउट कर दीजिएगा तो बाहर ही निकल जाइएगा। ये सॉरी, ये नहीं है स्टेप आउट, ये है स्टेप आउट करके उससे पूरे से बाहर निकल जाइएगा आप। इसके अंदर बहुत एंट्री करेगा। चलिए ये हो गया। ओह अभी और है, बाहर तो निकल जा। एक्चुअली जब आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करते हैं कोई भी, तो अंदर बहुत वो एंट्री करेगा। चलिए ये हुआ। अब हमें क्या करना है, 1 सेकेंड। अब हमें 1 सेकेंड, अभी क्या हुआ इसके अंदर, ये क्या, चलिए 1 सेकेंड, हुआ क्या, स्टेप ओवर, ये भी बाहर ही नहीं निकला है। 2 इक्वल टू स्टेप आउट तो कर दे रहा है। चलिए हम एक काम करते हैं, ब्रेक पॉइंट यहाँ से हटाते हैं और हम लोग डायरेक्ट ऊपर एक हमारा ब्रेक पॉइंट है। चलिए काफी है, रीलोड कर लेते हैं पेज को। ठीक है, डिबगर हमारा बंद हो गया, यहाँ से भी हम पाउस बंद कर सकते हैं। और अब रीलोड कीजिए। चलिए फॉर्म डॉट एजेस में हो गया। ये नंबर कब एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 10 जो लिखा हुआ है एग्जीक्यूट कब होगा, जब हम बटन को क्लिक करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बटन क्लिक करते हैं, बट यहाँ जो मोहन लिखा हुआ है ना, इसको हटाते हैं और हम लोग कुछ और वैल्यू पास करते हैं। सोहन पास कर दिए और हम लोग सबमिट करते हैं। आप देखिए सोहन पास हुआ। अभी यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं, सोहन के केस में नहीं दिख रहा है। बट हाँ एक काम करते हैं, सारा पे हम कर्सर रखते हैं। क्या दिख रहा है वैल्यू में, सोहन आया, लेफ्ट साइड में दे रहा है आपको। उसके बाद ये राइट साइड वाला के पास वैल्यू मिला है सोहन, बट ये यूजर नेम को मिल रहा है क्या, नहीं, क्यों, यूजर नेम को, क्योंकि वो लाइन बोलिए, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। करेक्ट, क्योंकि अभी हमारा ये लाइन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कैसे करेंगे, स्टेप इनटू करते हैं, बाहर निकलते हैं। एक लाइन पे हमें और लगाना चाहिए था, ओके ठीक है, एनीवे उसी पे गया है। तो अभी चेक कीजिए यूजर नेम क्या आया, सोहन दे रहा है। अब आप कर्सर भी रखिए इस पे, यूजर नेम पे सोहन आया। कंसोल डॉट लॉग में यूजर नेम आया हुआ है, तो कर्सर रखिए, सोहन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि पीछे में उसको उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को वैल्यू मिल गया था, करेक्ट। तो जब उसे वैल्यू मिल गया तो वो आगे वाले को भी तो दे देगा ना। तो वही काम यहाँ हो रहा है कि जो पीछे वेरिएबल को मिला वो वैल्यू यहाँ हमें मिल गया। अब आप नेक्स्ट जाइए, स्टेप इनटू कीजिए। अब देखिए कंसोल डॉट लॉग में क्या क्या दिया है आपको, 2 वेरिएबल था, कलर इनपुट जो है 00 करके है, और यूजर नेम इक्वल टू सोहन है। आप कर्सर रख सकते हैं इस पर, डायरेक्ट भी दिखाएगा वैल्यू। तो इस टाइप से क्या होता है ना, हम लोग हर एक वेरिएबल का विजुअलाइजेशन देखते हैं कंप्लीटली डिबगिंग मोड के हेल्प से। तो अगर हमारा किसी वैल्यू, सपोज दैट ये यूजर नेम है, ठीक है, और सपोज ये वैल्यू नहीं आता, मान के चलते हैं हम लोग कुछ गलती करते हैं अब फॉर्म डेटा में, क्या करते हैं, यूजर नेम कहाँ गया, यूजर नेम, हम लोग यूजर नेम लिखे हैं ना, हम लोग आईडी ही गलत कर देते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या होता है, वैल्यू आता है या नहीं, ठीक है। डेटा पास कीजिए, सबमिट कीजिए। चलिए अब देखिए, चेक करते हैं क्या दे रहा है वैल्यू में, कुछ आया कि नहीं, फिलहाल तो भी नहीं दिखा रहा है। चलिए स्टेप इनटू कर लेते हैं, इसमें एंट्री मार लें हम लोग पहले, क्या दिया, एरर दे रहा है। कलर रखिए, कर्सर रखिए, कर्सर तो एग्जीक्यूट ही नहीं करने देगा क्योंकि यहाँ तो गलत हो गया। आखिर गलत क्यों, कंसोल में देखते हैं एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, ठीक है, रीडिंग वैल्यू एट फॉर्म डेटा। मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे डेटा उसे नहीं मिला है, क्यों, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने गलत भी कर दिया। बात समझ में आया कुछ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग इस टाइप से है ना,
हर एक लाइन का आप जब डिबग मोड में जाते हैं, आपको हर एक लाइन का पिक्चर दिखेगा, क्लियर पिक्चर कि क्या हो रहा है उसमें। कभी भी आप ये स्टार्टिंग में क्या कीजिए, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आप चुपचाप उसे डिबग मोड में जाइए। आउटपुट दिख रहा है जरूर, ठीक है, बट आप डिबग मोड कीजिए, उससे आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा कि क्या हो रहा है। समझ गए? तो हम लोग डिबगिंग सीख गए कि कैसे कैसे होता है। फिर यहाँ से आप स्टॉप कीजिएगा, पेज रिलोड कर दीजिए। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार में आप समझ जाइएगा, बट हाँ जब 2-3 बार ओपन कीजिएगा आपको समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। समझ में आ गया? किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए। कोई भी चीज पे ट्राई करना है, कोई भी चीज तो बोलिए। किनको किनको समझ में आ गया और किनको कुछ नहीं आया?